السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، کئی دنوں پہلے یہ اعلان کیا جا چکا تھا کہ انشاءاللہ شرح الاربعین النوویہ کتاب کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کی تشریح اور اس کے معنی اور مفہوم اور اسی طرح سے اس میں جو فوائد ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ یہ آج پہلا ایپیسوڈ ہے، پہلی نشست ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح سے یہ سلسلہ 15 ایپیسوڈ تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، یہ بات ہم کو اور آپ کو اچھے طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس پر احسان کیا، بتایا، جتلایا اور کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر نبی کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم ہم تک پہنچائی، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ شرع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن کے بعد احادیث یہ دونوں ایسا مرجع ہے اور ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی رد کر دے اور کسی ایک کو بھی انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اعمال یہ تینوں چیزیں حدیثیں کہلاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اور انہی حدیثوں کو امام نووی رحمہ اللہ نے جو ہے اپنی اس کتاب میں اکٹھا کیا ہے، جو شرح الاربعین النوویہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی کتاب آپ کے سامنے پڑھائی جائے، کوئی کتاب آپ کے سامنے سنائی جائے، تو ایک مدرس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کے لکھنے والے کے بارے میں آپ کو ضرور بتلائے۔ تب اس کے بعد کتاب کا جو اگلا باب ہے، کتاب کے اندر جو چیز موجود ہے اس کو پڑھایا جائے اور بتایا جائے۔ کتاب کے مصنف کے بارے میں سب سے پہلے آپ جان لیں کہ ان کا پورا نام امام نووی رحمہ اللہ کا ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے نام کے آخر میں آپ دیکھیں النووی لگائے ہوئے ہیں۔ یہ نووی نوا کی طرف نسبت ہے۔ نوا ایک بستی کا نام ہے، ایک گاؤں کا نام ہے، اور جو دمشق کے قریب حوران شہر کے واقع یا قریب میں یہ بستی واقع ہے، اور اسی بستی کا نام نووی ہے۔ ان کے جد اعلیٰ تھے، جو دادا تھے، پردادا تھے، حزام یہاں آ کر کے اقامت پذیر ہوئے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی ولادت اسی نوا بستی میں ہوئی۔ سن 631 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے والد محترم جو تھے وہ نہایت ہی نیک تھے، بزرگ تھے، اور اسی طرح سے اسی لیے ان کی عمدہ تربیت کی اور عمدہ تربیت کا اہتمام کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ چونکہ نہایت ذہین و فطین تھے، بہت ہی عقل مند تھے، اسی طرح سے ان کے والد محترم نے ان کی تربیت کی اور تربیت کا انتظام کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جو ہے وقت کے بہترین اور ممتاز علماء کرام سے علمی فائدہ اٹھایا۔ جس فن کا جو ماہر ہوتا اسی صاحب فن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ جو جس فن کا ماہر ہے، جو جس فن کا استاذ ہے، اسی فن سے امام نووی رحمہ اللہ نے فائدہ اٹھایا۔ آپ کے اندر غضب کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزانہ 12 اسباق پڑھتے تھے، 12 سبق پڑھتے تھے۔ آپ تصور کریں، اور پڑھتے ہی نہیں تھے، صرف باقاعدہ ان کی شرح اور تعلیق کا کام بھی ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے۔ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے،
नींद का गलबा अगर हो जाता तो कुछ देर के लिए किताबों का सहारा लेकर ऊँघ लेते, उसी पर टेक लगा करके ऊँघ लेते और फिर बेदार होकर के फिर जाग करके अपने इल्मी कामों में मसरूफ हो जाते थे। यानी इस तरह से उन्होंने इल्म दीन को हासिल किया। अब तसव्वुर करें कि कितनी कुर्बानियां, कितनी अनथक मेहनत और कोशिश इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने की है। जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही नहीं मकबूलियत दी है, ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने उनको जो है जिंदा और जावेद रखा हुआ है। उनकी कामों को, उनकी मेहनतों को, उनकी काविशों को अल्लाह ताला ने नापैद नहीं किया है। इनके ताल्लुक से आता है कि इमाम साहब जब 18 साल की उम्र के हुए तो दमश्क चले गए। वहां मुख्तलिफ असातिज़े किराम से इन्होंने इल्म हासिल की। फिर मुख्तलिफ मदारिस में ये दर्स देने लगे, वहां पढ़ाने लगे और उसी दरमियान में निहायत ही जो है वाक़ई के साथ, दकीक के साथ, यूं कहिए कि तसनीफ और तालीफ का भी काम किया, जिनमें बहुत सारी किताबें उनकी हैं, जिनमें मशहूर किताबें हैं सही मुस्लिम की शरह है, इसी तरह से तहदीबुल अस्मा वल लुगात है, इसी तरह से किताबुल अज़कार है जिक्र में, और इसी तरह से मारूफ और मशहूर किताब रियादुस सालिहीन है जो हर आम व खास, हर खतीब, हर इमाम, हर मस्जिदों में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। और इसी तरह से अर्बईन अन्नवविया है जिसका दर्स आज मैं आपके सामने दे रहा हूं। ये तसव्वुर कीजिए कि इतनी अहम अहम किताबें जो इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने लिखी, जिनसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो है फैज़ याफ्ता हो रहे हैं और उससे रहनुमाई हासिल करते हैं। अजीज साथियों और दोस्तों, मेरे जो है साथियों, ये समझ लो आप कि 27 साल की उम्र तक इमाम नबवी रहमहुल्लाह दमश्क में रहे। 27 साल गुजारने के बाद जब दमश्क के बाद इमाम नबवी रहमहुल्लाह अपने मस्कन की तरफ पलटते हैं, यानी अपने गांव की तरफ लौटते हैं, अपने मौलिद जहां पैदा होते हैं नवा, वहां जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, तो 27 साल के बाद सन 676 हिजरी में कुछ अरसा बीमार रह करके इंतकाल फरमा जाते हैं। यानी टोटल उम्र जो इमाम नबवी रहमहुल्लाह को मिली वो 45 साल थी। अब आप तसव्वुर करें कि इस 45 साल की उम्र में इमाम नबवी ने कितना काम अंजाम दिया, कितने असातिज़ा, कितने उनकी जो है तालिब इल्म या उनकी किताबें। 45 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसी कम वक्त में कितना सारा काम किया, जिसकी वजह से वो मारूफ हुए, मशहूर हुए, जिसकी वजह से इल्मी हलकों में और इसी तरह से दीनी हलकों में उनको जो पजीराई हासिल है आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। अजीज साथियों और दोस्तों, अपनी इल्मी खिदमात की वजह से इमाम नबवी रहमहुल्लाह इल्मी दुनिया में आज भी जिंदा व जावेद हैं। उनकी किताबें लोगों के हाथों में होती हैं, इमामों के हाथों में, खुतबा के हाथों में, उनकी किताबें तलबा के हाथों में होती हैं, मुदर्रिसीन के हाथों में होती हैं, लोग फायदा उठाते हैं उससे। और तसव्वुर करें कि किस तरह से इमाम नबवी रहमहुल्लाह आज भी जिंदा जावेद है। जाहिर सी बात है उनकी किताब बहुत सारी है, लेकिन जिस किताब को आज हमने जो है चॉइस किया है या जिस किताब का आज मैं दर्स दे रहा हूं, उस किताब के बारे में भी आप जान लें। आप देखेंगे बहुत सारी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर बहुत सारे जो लोगों ने ये रिवायतें की हैं। और इस तरह से रिवायत पहुंचती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी उम्मत के लिए उस दीन के बारे में, यानी इस दीन के बारे में 40 अहादीस महफूज फरमा दी, अल्लाह ताला उसे बरोज़े क़यामत उलमा और फुक़हा की जमात में मबऊस फरमाएगा। और दूसरी रिवायत में है कि उसे अल्लाह ताला आलिम और फकीह बना करके उठाएगा। एक रिवायत में अबू दाऊद की है कि मैं उसे बरोज़े क़यामत उसका सिफारशी और गवाह रहूंगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। और इब्न मसऊद की रिवायत में है कि उसे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत में है कि उसका नाम उलमा की जमात में लिखा जाएगा और शुहदा की जमात में उसका हश्र होगा। लेकिन ये भी याद रहे कि इस तरह की जितनी भी रिवायतें पेश की जाती हैं, जितनी भी हदीसें बयान की जाती हैं, सब की सनदें मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ होने पर मुत्तफिक हैं। कहीं ना कहीं सनदों में कोई ना कोई झोल है।
لیکن امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے مختلف طرح کی تصانیفیں کی ہیں، بہت سارے لوگوں نے 40 حدیثیں جمع کی اور اکٹھی کی ہیں، اس لیے میں بھی 40 حدیثیں اکٹھی کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے استخارہ کیا انہوں نے۔ امام نووی فرماتے ہیں علماء کا اس بات پر اگرچہ اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث پر عمل کرنا جائز ہے، لیکن اس کے باوجود میرا اعتماد اس حدیث پر نہیں ہے کہ میں اس پر اعتماد کر لوں، بلکہ صحیح حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ تم میں سے حاضر غائب لوگوں تک باتوں کو پہنچا دے۔ تو عزیز ساتھیو، امام نووی رحمہ اللہ نے اس طرح سے 40 حدیثیں اکٹھا کی، بلکہ اس کتاب میں امام نووی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے 40 النوویہ، اس میں 42 حدیثیں ذکر ہیں۔ 40 کا تذکرہ مختلف حدیثوں میں ملتا ہے، لیکن آپ تصور کریں کہ اس میں 42 حدیثوں کا تذکرہ، 42 حدیثیں جو ہے ذکر کی ہیں اور لکھی ہیں امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کس کتاب میں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہوئی بات امام نووی رحمہ اللہ کے تعلق سے اور اس کتاب کے تعلق سے۔ اب آئیے اس کتاب کی پہلی حدیث جو ہے، جو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس حدیث کو آج بیان کیا جائے، اس حدیث کے بارے میں جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور طلبہ کو چاہیے کہ اس کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ یہ حدیث جو پیش کی جا رہی ہے اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے اور اس حدیث کے فوائد کیا ہیں۔ پہلی حدیث جو امام نووی نے اس کتاب میں پیش کی ہے وہ ہے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اور اب جو ہے متفق علیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہو، اور اس کے اور بھی دیگر چیزیں ہیں کہ متفق علیہ کن حدیثوں کو کہتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں چونکہ ہمارا مقصد ہے اس حدیث کا ترجمہ و تشریح کرنا۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ چنانچہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ ہوا حدیث کا ترجمہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر بن خطاب کے تعلق سے آپ جان لیں کہ یہ ان کا نام عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی کنیت ابو حفص ہے۔ نادر الوجود شخصیت تھے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ متعین کیا تھا اپنے بعد۔ انہوں نے یعنی حضرت عمر بن خطاب نے آفاق ارض کو یعنی پوری زمین، انسانیت کی زمین جو تھی اس کو حکم سے، عدل سے، فتوحات سے بھر دیا تھا۔ یہ تھے حضرت عمر بن خطاب۔ جاہلیت کے زمانے میں قبیلہ قریش کی یہ سفیر رہا کرتے تھے۔ سن 7 نبوت میں یعنی سن 7 نبوی میں ذی الحجہ کے مہینے میں دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر یہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ثانی اللہ کے رسول جب نبی بنائے گئے اس کے 7ویں سال یہ نبوت کے 7ویں سال ذی الحجہ کے مہینے میں دار ارقم میں اسلام میں داخل ہوتے اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر۔ ان کے قبول اسلام میں ان کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے غزوات میں شریک ہوئے سوائے غزوہ تبوک کے، سارے غزوات میں شریک رہے لیکن صرف غزوہ تبوک میں شریک نہ رہ سکے، اور جب وہ خلیفہ بنے تو ان کے عہد خلافت میں فتوحات کا سیلاب امٹ پڑا، یعنی چاروں طرف سیلاب، یعنی اس طرح سے آیا فتوحات کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ عراق، فارس
शाम, मिस्र, बड़े बड़े जो इलाके थे सब जो है इस्लामी सल्तनत के हुदूद में शामिल हो गए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है कि शहादत कैसे होती है, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था जिसका नाम अबू लूलू था। अबू लूलू के इस इक़दाम से और उसके मारने की वजह से मुकाम शहादत पर फाइज हो गए और सन 24 हिजरी में मुहर्रम के महीने में शहादत जो है उनकी हुई और इस तरह से शहादत का वाकया पेश आया। अजीज साथियों और दोस्तों, ये हजरत उमर बिन खत्ताब है जो इस हदीस का रावी है, इस हदीस को रिवायत करते हैं। इस हदीस के बहुत सारे फवायद और अहकाम हैं। सबसे पहला फायदा और इस हदीस की जो खुसूसियत है वो ये है कि ये हदीस हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बगैर किसी वास्ते के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया है। जैसे कि मैंने पढ़ा था ना कि अन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि जो है मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है सुना है। तो इस तरह से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है डायरेक्ट इस हदीस को सुनते हैं अल्लाह के रसूल से और उसको बयान करते हैं। इसी तरह से दूसरी खुसूसियत इस हदीस की है कि यह हदीस हजरत उमर बिन खत्ताब के अलावा किसी और से जो है रिवायत नहीं है। जैसे बहुत सारी हदीसें हैं जो कई कई रावियों से रिवायत है, लेकिन यह हदीस सिर्फ और सिर्फ हजरत उमर बिन खत्ताब से रिवायत है। एक फायदा इस हदीस का भी है, अजीम हदीस है और इतनी अजीम हदीस है ये कि उलमा उसकी सेहत और कबूलियत पर मुत्तफिक है। इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी की जो इब्तिदा की है इसी हदीस से की है और इसी हदीस को सबसे पहले लाए है इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस जो है। इस हदीस पर जो है यूं कहिए कि दीन का मदार है। अब्दुर्रहमान बिन मेहदी फरमाते हैं रहमहुल्लाह कि जो शख्स कोई किताब तसनीफ करे तो इस हदीस की इब्तिदा, इस किताब की इब्तिदा इसी हदीस से करे। अब आप देखें बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबों को लिखा है और बहुत सारे लोगों ने इस हदीस से ही अपनी किताब की इब्तिदा की है और शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये हदीस आधा दीन है। बहुत सारे लोगों ने तो 1/3 कहा है। क्यों कहा है आधा दीन है? इसलिए कि ये दीन ये जो है दिलों और जवारे के अमाल का नाम है और ये हदीस दिलों के मुकाम, दिलों के अमाल तक पहुंचती है, इसलिए आधा दीन इसको कहा है। तो ये हदीस बहुत ही अहम है जिसको हजरत उमर बिन खत्ताब ने रिवायत की है। दूसरा फायदा यह है कि इस हदीस के शान वरूद पर यह भी जान लें कि एक बहुत किस्सा मशहूर है कि एक शख्स मदीना की औरत से निकाह करना चाहता था, लेकिन उस औरत ने हिजरत के बगैर शादी करने से इनकार कर दिया। उस औरत ने कहा कि जब तक तुम मक्का से हिजरत करके मदीना नहीं आ जाओगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। चुनांचे उस शख्स ने उस औरत से निकाह की खातिर हिजरत की और उसी बिना पर मुहाजिर उम्मे कैस के लक़ब से मशहूर हो गया। लेकिन हाफिज इब्न रजब फरमाते हैं कि किसी सही सनद के साथ इसकी कोई असल हमें नहीं मिली कि क्या यह वाकया दुरुस्त है, क्या यह वाकया सही है। कहते हैं हाफिज इब्न रजब कि ये कोई सही रिवायत से हमें सही सनद के साथ ये वाकया हमें नहीं मिली, इसलिए इस तरह से वाकया बयान करना दुरुस्त नहीं है। इसमें फरमाया गया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कोई भी अमल नीयत के बगैर नहीं होता है। इंसान पहले दिल में नीयत करता है फिर उसको अमली शक्ल देता है अपने। इसीलिए देखे बाज सलफ का कौल है कि अगर अल्लाह ताला हमें नियत के बगैर अमल पर मुकल्लफ कर देता तो ये तकलीफ माला युताक होती, कोई फायदा होता। आप तकलीफ भी उठाएं और उसके बाद आपको कोई फायदा भी ना पहुंचे। तो इस तरह से जो है इंसान पहले दिल में नियत करता है फिर उसको अमली शक्ल देता है। हदीस का दूसरा मफहूम भी ये है हो सकता है कि आमाल का इस्लाह और फसाद या रद्द और कबूल, सवाब और इकाब नियत के मुताबिक होता है। जैसी आपकी नियत होगी वैसे ही आपको उसका फायदा मिलेगा। अच्छा होगा तो अच्छा बदला मिलेगा, नियत खालिस होगी तो आपको बेहतरीन बदला और बेहतरीन अजर सवाब मिलेगा। और अगर आपकी नियत खालिस नहीं है, रियाकारी और दिखलावा है, तो उसका अलग मुकाम है और उसको अलग तरीके से देखा जाएगा, उसका अलग आपको इकाब और सजा मिलेगी। इसलिए हदीस के दूसरे मफहूम को भी जानना जरूरी है। इसी तरह से चौथी बात ये जान ले कि एक मुसलमान को अपनी नीयत की इस्लाह और दुरुस्तगी की हमेशा फिक्र जो होनी चाहिए, हमेशा जो है
फिक्र दामनगीर होनी चाहिए कि मेरी नीयत साफ रहे, और अपने हर अमल में अपनी नीयत को साफ रखे, और जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत हो, उसकी वजह से जन्नत नसीब हो। और इसी तरह से सलफ़े स्वालिहीन की नीयतों में इखलास की बड़ी फिक्र होती थी, वो इस पर बहुत तवज्जो दिया करते थे। आज हमारे मुआशरे में या हमारे बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे साथियों को आप देखेंगे कि वो जो है नीयत कुछ होती है, अमल कुछ होता है, दिल में कुछ है, अमल सामने कुछ होता है, नीयत दुरुस्त नहीं है, बस किसी भी तरह से जो है काम हो जाए, नीयत खल्ली वल्ली, नीयत से कोई उनका ताल्लुक नहीं होता है। हालांकि असलाफ का ये मामला नहीं था, असलाफ नीयतों में इखलास पैदा करते थे और उसकी हमेशा फिक्र किया करते थे। नीयत अगर नेक है आपका तो बहुत सारी मुबाहात चीजें हैं जो अगर वो आप काम करते हैं मुबाहात को, तो भी आपको उसका अजर सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पर खाना पीना, सोना, जागना, अहल अयाल पर खर्च करना वगैरह वगैरह, ये सब बाइसे अजर सवाब हो जाते हैं। आदमी अगर खाते और सोते वक्त ये नियत रखे, अपने अहल अयाल को अगर पैसा भेजता है, खर्च करता है, उसको उनको देता है, उनके लिए तमाम जरूरियात को पूरी करता है, और नियत उसकी सवाब जो है ये है कि मुझे इसका सवाब मिलेगा, तो अल्लाह की इताअत पर उसको ताकत और सवाब हासिल होगी, और इसी तरह से उसकी निशात भी लौट आएगी, उसको अजर सवाब भी मिलेगा। अजीज साथियों, जब आप ये काम करते ही हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, अपने बच्चों को पर खर्च करते हैं, तो नीयत साले होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, ताकि मुबाह चीजें भी आपके लिए अजर सवाब का बाइस बन जाए। पांचवी चीज ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि नीयत की दो किस्में हैं। नीयत, एक इस बात की नीयत कि किसी तरह से ये अमल जो हम करने जा रहे हैं ये किस तरह से है, क्या महज अल्लाह की खातिर है? अगर ऐसा है तो उसी का नाम इखलास है। जो काम इखलास, जो आप काम करने जा रहे हैं, अगर आपकी नीयत दुरुस्त है, जो आप अमल कर रहे हैं अगर ये अल्लाह की खातिर है, तो आप इस तरह से, उसी का नाम इखलास है, जिसके बगैर अल्लाह के नजदीक कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। अगर कोई अमल अल्लाह की खातिर ना हो बल्कि गैरुल्लाह के लिए हो, मिसाल के तौर पर किसी बुत के लिए, किसी वली के लिए, या रिया और नमूद और दिखलावे के लिए, दौलत और शोहरत के वगैरह के लिए, उसके हुसूल के लिए, तो ये अमल इखलास से आरी है। ये अमल कर तो ले रहे हैं आप, लेकिन इसमें इखलास नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये अमल शिरकिया हो जाता है, बल्कि निजात के अलावा ये हिलाकत का सबब बन जाता है। इसलिए ये नीयत जो है आपकी खालिस होनी चाहिए और दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि आप जो अमल करें वो आपका अमल आपके लिए कारगर साबित हो। दूसरी किस्म नीयत की है जिसके जरिए से इबादत और आदत में, चाहे वो इबादत में एक दूसरे से तमीज होती हो। मिसाल के तौर पर आप गुस्ल कर रहे हैं, तो आपके गुस्ल करने की नीयत अगर बदन की सफाई है तो आपको बदन आपका साफ हो जाएगा, आपको उस पर कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर जनाबत से तहारत की आपकी नीयत है कि हम नापाक हैं और हम सुन्नत के मुताबिक जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे हम जो है ये काम करते हैं, तो उस तरह से आपको आपकी नीयत के मुताबिक आपको उसका सवाब मिलेगा। जैसे ही इबादत करते वक्त, मिसाल के तौर पर आप फर्ज पढ़ रहे हैं या नफिल पढ़ रहे हैं, तो आपकी नीयत अगर मिसाल के तौर पर फजर में 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात फर्ज है, 2 रकात सुन्नत अगर आप पहले पढ़ते हैं, आपकी नीयत सुन्नत की है तो सुन्नत है, अगर नीयत फर्ज की है तो फर्ज की है। तो इबादत में भी यहां तफरीक नीयत के मुताबिक हो जाती है। अब रही बात यह कि नीयत कैसे की जाए, नीयत का मुकाम क्या है? नीयत का मुकाम दिल है, जुबान नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल को दिलों का हाल बखूबी मालूम है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नीयत का जो मुकाम है वो दिल है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत का मुकाम दिल है। दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में आप उठा के देख ले, नीयत जो है उसका मुकाम दिल ही बतलाया गया है, जुबान से नहीं कहा गया है। जो लोग नीयत जुबान से करते हैं उसको कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि लफ्जी नीयत जो हमारे मुआशरे में राइज है, चाहे नमाज में हो, चाहे रोजे में हो, चाहे दीगर और इबादत में हो, अगर ये नीयत जुबान से की जाती है और वो शरीयत से उसका सबूत नहीं मिलता है, तो ये जान लीजिए कि वो बिदअत है। इसीलिए नीयत दिल से किया जाएगा, जुबान से नहीं किया जाएगा। हमारे मुआशरे में जो नमाज के लिए बच्चे, बहुत सारे नमाजी खड़े होते हैं
اور نیت کرتا हूं 2 रकात नमाज की। न जाने कैसे कैसे लोग बयान फरमाते हैं और इस तरह से उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हैं। ये जान लीजिए कि नियत जो है गोया कि आपकी नमाज की इब्तिदा बिदअत से होती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग रमजान के महीने में रोजा रखेंगे और सहरी खाने के बाद बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान नियत करेंगे जुबान से। इसकी भी कोई असल नहीं है, बेबुनियाद है। यानी रमजान का रोजा भी आपकी बिदअत से शुरू होता है। इसलिए नियत दिल में होना चाहिए। आपके दिल में है कि मैं नमाज फर्ज पढ़ रहा हूं, नफिल पढ़ रहा हूं, फजर पढ़ रहा हूं, जुहर पढ़ रहा हूं। नियत कहते क्या? मतलब ये कि कस्द और इरादा करने का नाम नियत है। जिस कस्द और इरादा से आप उठे हैं, वजू बनाए हैं, अजान हुई है, इकामत हुई है, जिस रात सहरी खाने के लिए आप उठे हैं, उसकी नियत यह है कि आप कल रोजा रखूंगा, यही नियत है। अब अगर कोई जुबान से करता है तो ये बिदअत है, इसलिए जुबान से नियत करने की जरूरत नहीं है। हाल बत्ता जो हज और उम्रे में लोग नियत मीकात पर जाकर के करते हैं, लब्बैक उम्रतन या लब्बैक हज्जन या अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन या अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन मुतमत्तिअन बिहा इलल हज, ये जो नियत है ये एक शिआर है, अल्लाह के रसूल ने सिखलाया है। अगर कोई इसको ना भी कहे, ना भी कह सके, ना भी जुबान से अदा कर सके, उसके दिल में अगर है तब भी उसका हज और उम्रा हो जाएगा। तो अजीज साथियों और दोस्तों, जहां अल्लाह के रसूल से कहना साबित है वहां एक शिआर के तौर पर आप कह रहे हैं, सुन्नत के तौर पर कह रहे हैं, बाकी जगहों पे साबित नहीं है। इसी तरह से 7वीं चीजें भी जान लें कि किसी मफहूम को ज़हन से करीब करने के लिए, किसी भी चीज को समझाने के लिए मिसालों का बयान करना जायज है। जैसे कि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर के समझाया है, वाज़े कर दिया कि जो अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करेगा उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल की तरफ होगी। जो किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत करेगा, दुनिया हासिल करने के लिए करेगा, उसकी हिजरत उसी की तरफ होगी। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर के इस बात को समझा दिया है कि नियत के मुताबिक उसको उसके जो है गुनाह या सवाब का मामला होगा। अगर नियत अल्लाह और रसूल की तरफ है तो सवाब का काम है, दुनिया और इसी तरह से किसी औरत की तरफ है तो यहां भी मामला वही है कि वो समझ में बात आ जाएगी कि इसकी हिजरत किसकी तरफ है। इसलिए अजीज साथियों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने मिसाल देकर के बयान फरमाया है। आप अगर कोई मिसाल देकर के किसी को बात समझाने की कोशिश करते हैं तो जायज है, मिसाल देकर के सही मिसाल, जायज मिसाल, दुरुस्त मिसाल देकर के बात को जहन से करीब करने के लिए समझाया जा सकता है, जैसे कि अल्लाह के रसूल ने समझाया है। इस हदीस में हिजरत की बात की गई है। हिजरत जो है, हिजरत की किस्में हैं और तकरीबन 3 किस्में, बाद लोग 4 किस्मों को बयान फरमाते हैं। हिजरत यानी हिजरत मकानी, यानी मिसाल के तौर पर यह कि अगर कोई शख्स किसी मुल्क में रह रहा है और अपने दीनी शायर आजादाना तौर पर अदा नहीं कर सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, अजान नहीं दे सकता, या इसी तरह से और बहुत सारे काम वो दीन के काम अंजाम नहीं दे सकता है, तो उसको छोड़कर ऐसे मुल्क में चला जाए जहां उसे आजादी हासिल हो। दूसरी हिजरत यह है हिजरत अमल। वो ये है कि अल्लाह की मना करदा चीजों से रुक जाए, बाज आ जाए। अल्लाह ताला ने हराम कर दिया बहुत सारी चीजों को, लेकिन आदमी जो है उस पर अंजाम दे रहा है उसको किए जा रहा है, तो वो उसको छोड़ करके और अल्लाह और रसूल की तरफ पलट जाता है कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा। इसी तरह से हिजरत जो है आमिल है, वो ये है कि कोई बिदाती है, कोई फासिक और फाजिर है, और वो फासिक और फाजिर को छोड़ दिया जाए, उससे तर्के ताल्लुक कर लिया जाए, उससे दूर हो जाया जाए, हत्ता कि वो अपनी उस बिदात को और अपनी उस नाफरमानी को तर्क कर दे और छोड़ दे। इस तरह से उससे आप दूरी बना ले कि भाई जब तुम ये काम छोड़ोगे तब हम तुम्हारे पास आएंगे। अलबत्ता अगर उनको छोड़ने में अगर कोई मसलहत है तो छोड़े, अगर मसलहत नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मसलहत का मतलब ये कि आपको उम्मीद है कि अगर हम इससे रिश्ता तोड़ लेंगे, अगर हम इससे दूर हो जाएंगे, अगर हम इससे हिजरत अख्तियार कर लेंगे तो उसका फायदा हो सकता है कि ये बास आ जाए और रुक जाए। अब मसलहत ही नहीं है, कोई फायदा नहीं, वैसे अपनी अनानियत और तकब्बुर की बिना पर या किसी और सबब की बिना पर आपने छोड़ दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से हिजरत अल्लाह के रास्ते में करना एक अजीम सवाब का काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही। यहां पर इस बात की तरफ इशारा किया है कि हिजरत में बहुत बड़ा सवाब है और जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को, किसी को नहीं है।
कि कितना सवाब अल्लाह ताला उसको दे दे। अल्लाह के नाम पर अपने घर, अपने मकान, अपने दोस्त, अपने हबाब, अपने मुल्क को छोड़ करके अगर अल्लाह की खातिर वो हिजरत करता है, रसूल की खातिर हिजरत करता है, अपने दीन की हिफाजत की खातिर वो तमाम चीजों को तर्क कर देता है, तो ये जान लीजिए कि इसका सवाब बहुत बड़ा है। और कितना है इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। इसी तरह से 10वीं बात यह है कि दुनिया कमाने के लिए भी हिजरत करना जायज है। दुनिया कमाने के लिए लोग अपने मुल्क को छोड़ के जा जाते हैं, दूसरे मुल्कों में आ जाते हैं, चले जाते हैं यहां वहां, चलो भाई दुनिया कमाना है। हिजरत तो इसी के छोड़ के चले आए मुल्क को, अपने बाल बच्चों को, बीवी को, घर वालों को, अहल वयाल को, कौम को, वतन को, सबको छोड़ करके चले आए दूसरे मुल्क कमाने के लिए। ठीक है, कमाना करना जायज है, लेकिन जबकि उसके लिए फितना ना बने। शर्त है कि दुनिया उसके लिए इस बात पर मददगार हो कि अल्लाह की इताअत और दावत इल्लाह में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी, तब तो दुनिया वो कमाए, दुनिया के लिए छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाए, लेकिन जहां भी रहे वहां रह करके अल्लाह के दीन की पाबंदी करे। ऐसा ना हो कि दुनिया तो पाने के चक्कर में, ज्यादा दौलत कमाने के चक्कर में अल्लाह के दीन को तर्क कर दे, छोड़ दे, नमाज रोजा तर्क कर दे, हज उमरा छोड़ दे, और हाय रे दुनिया लगा रहे उसी चक्कर में कि मुझे सिर्फ दुनिया कमाना है। तो इस तरह से माल उसके लिए फितना बन जाता है, और माल जब फितना बन जाता है तो उसके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। तो अगर इस नीयत से कोई दुनिया कमाने के लिए जाता है, लेकिन अगर उस फितना नहीं बनता है तो उसके लिए जायज और दुरुस्त है। 11वीं बात, दुनिया आखिरत के मुकाबले में, यानी दुनिया जो है आखिरत के लिए अमल करने की जगह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, अब दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो दुनिया जो है ये आखिरत के लिए अमल करने की जगह है, और यही दुनिया आपके अमल को जाय भी कर देती है। वो दुनिया आखिरत के लिए अमल करने की जगह, जैसे मिसाल के तौर पर इस दुनिया में रह करके आप क्या करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, हाजिरी होती है आपकी, वहां आपके एक दूसरे साथी होते हैं, ताउन करते हैं, मददगार करते हैं, हाल चाल दरियाफ्त मालूम करते हैं, इसी तरह से, और आप हज करते हैं, उम्रा करते हैं, मरीजों की इयादत करने की गरज से जाते हैं, जनाजे में आप शिरकत करें। इसी तरह लोगों के दिलों में अपनी जगह को बनाएं, अपने अच्छे अखलाक के जरिए से, हुस्न अखलाक के जरिए से आप इस दुनिया में रह करके इल्म शरई हासिल करें, ताकि दुनिया में आपका मुकाम बुलंद हो। तालीम और ताल्लुम, सीखना और सिखाना दोनों आप जारी रखें। आपके लिए आखिरत की खेती है, जो अच्छे काम करेंगे आपको वहां उसका बदला मिलेगा। हमेशा दावत के काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें आप, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे मिसाल के तौर पे प्रोग्राम चल रहा है, ये दर्स हो रहा है, बहुत सारे भाई हमारे इसमें शरीके कार हैं, बहुत सारे भाई मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीकों से इसको आगे बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, और अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद और नफा बख्श है कि इल्म को, अल्लाह और रसूल की बातों को और मुहक्कक बातों को आप दूसरों तक फॉरवर्ड करते हैं। हमेशा दावत के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं आप, मुहाजरात हो, दुरूस हो, चाहे जहां आप रहें, सफर में रहें, हजर में रहें, घर पर रहें, या आप कहीं दूसरे मुकाम पर रहें, जहां भी है आप इसमें काम में लगे हुए हैं, ताकि मकसद आप क्या है, नीयत आपकी क्या है, ताकि दूसरे लोग कसरत से फायदा उठाएं। दूसरे लोग इससे फायदा उठाएंगे तो इस तरह से आपको उसका सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। और इसके साथ साथ मौजूदा वसाइल को भी इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सबको आप इस्तेमाल करें अच्छे काम के लिए, बेहतर काम के लिए। आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। जब आपके जरिए से कोई हिदायत मिलेगी, किसी को अच्छा फायदा मिलेगा, किसी को जो है रहनुमाई मिलेगी, तो आपको उसका अजर मिलेगा। तो दुनिया जो है ये अमल करने की जगह है, लेकिन ये दुनिया आपके अमल को जाय भी कर देती है और आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि आपने सुना होगा कि क़यामत वाले दिन 3 आदमियों को सामने लाया जाएगा। उनमें से एक जो है आलिम होगा, और एक मालदार होगा, सखी होगा, और एक मुजाहिद होगा जो जंगे लड़ा करता था, शहीद होगा। तीनों को अल्लाह ताला बुलाएगा और तीनों से पूछेगा। आलिम कहेगा अल्लाह तेरे दीन को हमने लोगों तक पहुंचाया। अल्लाह कहेगा नहीं, तुमने इस मकसद से पहुंचाया ताकि तुम्हें आलिम कहें, खतीब कहें, मुकर्रिर कहें, ताकि लोग तुम्हें समझे कि हाँ फला बड़ा आलिम है। तुम्हारे अंदर रियाकारी और दिखलावा था, नीयत साफ नहीं थी। इसी तरह से उसको घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा।
मालदार को भी लाया जाएगा, खूब अपने माल को लुटाता था गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों, बेवाओं में, लोगों में, ताकि लोग उसको सखी कहें। अल्लाह उसको बुलाएगा और कहेगा कि माल दिया था, क्या क्या तुमने? वो यही कहेगा, अल्लाह हमने अल्लाह की दी हुई माल को लोगों में तकसीम किया। अल्लाह कहेगा नहीं, तुम्हारा मकसद था कि तुम लोगों में सखी कहलाओ, ताकि तुम्हें कहें कि बड़ा देनदाता है। अल्लाह कहेगा तुम्हारी नीयत दुरुस्त नहीं थी। तो देखिए, माल उसके लिए वबाले जान दुनिया में हो गया, अल्लाह ताला उसे घसीट करके जहन्नम में डाल देगा। इसी तरह से वो शहीद, वो भी आएगा, अल्लाह उससे भी पूछेगा कि अल्लाह तेरे रास्ते में मैंने अपनी गर्दन कटवा दी, तेरे रास्ते में अल्लाह दीन की खातिर मैंने जो शहादत अख्तियार कर ली। अल्लाह कहेगा नहीं, तुम्हारा मकसद ये था कि तुम्हें लोग शहीद कहें, तुम्हें लोग गाजी कहें, इसलिए तुमने ये काम किया, तुम्हारी नीयत साफ नहीं थी। तो देखिए, किसी की जो है तकरीर जो है, किसी का खिताब और किसी का माल हो, किसी की सखावत और किसी की जो शहादत, ये अगर नीयत उसकी दुरुस्त नहीं थी, इस तरह से दुनिया में उसके लिए फितना बन गया और दुनिया में उसके अमल को जाय हो गया और वहां जाकर के जहन्नम में घसीट के डाल दिया गया। अजीज साथियों और दोस्तों, दुनिया ये बहुत खतरनाक है और खास तौर से इस दुनिया में औरत का फितना और माल का फितना बहुत खतरनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि मैं सबसे बड़ा फितना जो छोड़ के जा रहा हूं वो औरत का फितना है, और दूसरी हदीस फरमाया कि हर उम्मत के लिए फितना है और हर मेरी उम्मत में जो सबसे बड़ा फितना है वो माल है। इसलिए इस फितने से अपने आप को बचा के रखें। दुनिया की हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक कुछ नहीं है। इसीलिए आप देखें, इस हदीस में जो बयान हुआ है कि फहिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही वहिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतु इला मा हाजर इलैहि, और उसके बाद बयान हुआ कि फहिजरतु इले दुनिया युसीबुहा औ इमरातिन यनकिहुहा फहिजरतु इला मा हाजरा इलैहि। अल्लाह ने दोबारा दुनिया का हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान फरमाया, इसलिए कि दुनिया बड़ी हकीर चीज है। एक बार अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया, काफी था। दूसरी बार अल्लाह के रसूल ने उसको बयान नहीं किया आखिर में, कि जो है दूसरी बार भी उसको तस्करा किया जाए, इसलिए कि ये हकीर चीज है, दुनिया की कोई वकात नहीं है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। और वैसे भी मुख्तलिफ हदीसों से साबित है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। आज के इस एपिसोड में, इस दर्स में यहीं तक बात खत्म होती है। इस हदीस को मैंने आपके सामने पेश फरमाया है, इसमें बहुत सारे फवायद हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसको आप याद करें, सुने, बार बार सुने। जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। आगे लोगों तक फॉरवर्ड करें और पहुंचाएं, और इस तरह से अपनी इम्तिहान की तैयारी करें। इंशाअल्लाह आखिर में चल करके आपका इम्तिहान होगा, शहादा दिया जाएगा, और इसी तरह से आपको इनामात से भी अच्छे नंबरात पाने वालों को नवाजा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए, और हदीस के जो फवायद हैं अल्लाह ताला उसे हमें फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।